my YouTube channel. This is Sangeeta, and from today we will start the sedimentology lectures. So for these lectures, I will start with the carbonate chemistry, and then we will move to the carbonate classification. Okay. So we know that for the formation of carbonate, what is needed in the atmosphere? There is CO2. Okay, and suppose this is ocean. So what is the formula of water? It is H2O. So when this CO2 get dissolved in the ocean, it will form the carbonic acid. But the problem is it will not stay stable for a longer time because it is an unstable element. So it will dissociate into H positive and HCO3 negative. What is HCO3 negative? It is bicarbonate ion. ठीक है, आप ये नाम याद रखते जाना. H2CO3 is carbonic acid, HCO3 is bicarbonate ion, and again it will also not stable and dissociate into CO3 and 2 negative plus 2H positive. What is CO3 2 negative? It is carbonate ion, which is of our use for the formation of carbonate. So this is the main ingredient which we need for the formation of carbonate. Okay. So okay, after this carbonate ion हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम इस ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं कि किसकी अबंडेंस कहाँ पे ज़्यादा होगी. ओके, सो लेट्स सी द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट आयन एंड कार्बोनेट आयन with respect to the pH of the ocean water. Okay, so this dash line will denote to the average pH of the sea water or ocean water, which is 7.5. all right, so let's see this one. Okay, अगर हम इस पोर्शन पे फोकस करें, you see most of the portion is bicarbonate ion and only this much portion is of, ये किसका है, दिस इज कार्बोनेट आयन. ठीक है, तो हमें क्या है कि एवरेज ओशन वाटर में हमें सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग HCO3 नेगेटिव ग्रेटर देन CO3 2 नेगेटिव. ठीक है, तो हमें एवरेज ओशन वाटर में हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग बाइकार्बोनेट आयन इन दी अबंडेंस. ओके, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं थोड़ा पीएच बढ़ा दूं, 7 से ज्यादा कर दूं, तो क्या होगा, ये देखो, ये ग्राफ पूरा यहाँ चला गया CO3 का. यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग more percentage of carbonate ion and very less percentage of bicarbonate ion. Okay, so it means if I increase the pH, if I increase the hyper alkalinity, है ना, hyper alkaline बना रही हूँ मैं किसी चीज को, so we are getting carbonate ion more. Okay, we are getting carbonate ion more as compared to this HCO3 negative. अब मैं क्या करती हूँ, पीएच को कम कर देती हूँ. पीएच को कम करेंगे, इधर जाएंगे हम, है ना, एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, एसिडिक हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग कार्बोनिक एसिड मोर, है ना, इतना पोर्शन मिल रहा है हमें कार्बोनिक एसिड का, एंड वी आर गेटिंग ओनली दिस मच पोर्शन ऑफ व्हाट, बाइकार्बोनेट आयन. अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करी आपने, हमें यहाँ पे तो कार्बोनेट आयन तो मिल ही नहीं रहा. इफ वी डिक्रीज द पीएच, वी आर नॉट गेटिंग कार्बोनेट आयन ओवर देयर. So what is the ideal condition for the carbonate precipitation? The environment should be greater than 7 pH होना चाहिए उसका. It means alkaline होना चाहिए, क्योंकि acidic environment में तो we are not getting carbonate ion. So this is the main funda of explaining this diagram to you, that what is the favorable condition for the precipitation of carbonate ion. Alright, so now let's move to the classification of carbonate after this. Carbonate classification was given by one and only Dunham. कब की बात है ये, 1960s की बात है. It was given in 1962 and इसका बेस क्या था, it was totally on the basis of thin section. ठीक, और अभी हम जब ये लाइमस्टोन क्लासिफिकेशन देखेंगे तो मैं बोलूँगी बार बार मिक्राइट मिक्राइट, तो देख लेते हैं मिक्राइट क्या होता है. मिक्राइट इज कार्बोनेट मड. ठीक है, और क्या बोलते हैं, लाइम मड, और मैं ये भी बोल सकती हूँ कार्बोनेट मड प्लस क्ले प्लस सिल्ट. अगर मैं ये बोलूँगी तो ये गलत नहीं होगा. मिक्राइट इज कार्बोनेट मड प्लस क्ले प्लस सिल्ट. ऑलराइट, आपको ये डायग्राम दिखेगा, एक गैस्ट्रोपॉड बना है और उसमें यहाँ पे देखो ब्लैक ब्लैक जो है ये सारा मिक्राइट है, और जो ये वाली स्पेस है इसको कोई ब्लैक कलर का चीज भर रहा है, दैट इज सीमेंट.
तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज मिक्राइट एंड व्हाट इज सीमेंट। तो दोनों में डिफरेंस है। मिक्राइट इट इज अ सेडिमेंट और सीमेंट क्या है कि जो भी पोर स्पेसेस होती हैं, जी जो भी पोर स्पेसेस है इनको जो फिल कर रहा है बाद में आफ्टर द डिपोजिशन, दैट इज सीमेंट। ओके, so let's see the carbonate classification now. Start the Dunham classification. So first criteria for Dunham classification is that whether the depositional texture is visible or not. ठीक है, depositional texture is recognizable. Second step is original components जो थे, मतलब जो बनने से पहले जो पहले के sediments हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। तो फर्स्ट केस में मैंने बोला दैट दे आर नॉट बाउंड टुगेदर। ओके, इसका मतलब क्या है, दैट आई एम सेइंग इट कंटेन्स मड। ओके, सो मड का मतलब क्या है कि वो मिक्राइट में मिलेगा। मिक्राइट क्या होता है, कार्बोनेट मड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 3 स्टेप पहले डनहम क्लासिफिकेशन के। उसके बाद मैं बोलूंगी दैट इट इज मड सपोर्टेड बिकॉज आई एम सेइंग दैट इट इज कंटेनिंग मड। ओके, so if it contain less than 10% grains, then I will call it as mudstone. Okay, and if it contain more than 10% grains, then I will call it as wagstone. और ये याद रखना that grains are not touching each other. देख रहे हो कोई टच कर रहा है क्या, नहीं, सब एक दूसरे से दूर है। उसके बाद आएगा ग्रेन सपोर्टेड। अब ये भूल जाओ दैट इट वाज मड सपोर्टेड। अब मैं बोल रही हूँ कि ये ग्रेन सपोर्टेड है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और जो इसका मिक्राइट था वो यहाँ पे मिक्राइट जो है वो चेंज होके क्या बना रहा है, एक ग्रेन बना रहा है, बड़ा ग्रेन विच इज पिलॉइड। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे फीकल पैलेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीकल पैलेट विच इज पिलॉइड। अब यहाँ पे क्या है, भूल जाओ इट वॉज कि मड था, अब यहाँ पे मड नहीं है, यहाँ पे हमें मिलेगा सीमेंट इंस्टेड ऑफ मिक्राइट। हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सीमेंट मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे ग्रेन स्टोन। ठीक है, इसके डायग्राम आपको अभी दिखा दूंगी मैं। और लास्ट आएगा हमारे कैटेगरी दैट, अभी तो मैंने बोला था कि जो वो है लूज सेडिमेंट्स है, मतलब कि एक दूसरे से जुड़े नहीं है। अब मैं बोलूँगी दैट दे आर बाउंड टुगेदर, और उसका एग्जाम्पल है कोरल रीफ और एल्गल मैट्स, जिसकी वजह से डनहम क्लासिफिकेशन को और एक्सटेंड करना पड़ा। तो इसको हम बोलेंगे बाउंड स्टोन। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या एक्सटेंशन हुई है इस क्लासिफिकेशन की।